کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ مسلمانوں کو سیاسی شعور بیدار کر لینا چاہیے۔ یہ سمجھنے لگ گئے کہ بی جے پی موت کا فرشتہ، کانگریس جو ہے امن کا مسیحا، دونوں بھی میں نہیں مانتا۔ نہ یہ موت لا سکتے ہیں اور نہ یہ امن لا سکتے ہیں۔ آپ کو اور دوسرے لوگوں کو میں میسیج یہ دینا چاہوں گا، مسلمانوں اگر انتظار کرتے رہو گے حالات سازگار ہو جائیں، مر جاؤ گے اور کچھ نہیں ہونا ہے۔ چنگیز خان سے زیادہ تو حالات خراب نہیں کیے گئے ہوں گے ابھی، انہوں نے تو پورے ہماری کھوپڑیوں سے مینار بنا دیے تھے۔ میں تو مقتل میں بھی قسمت کا سکندر نکلا، قرۂ فال میرے نام کا اکثر نکلا، شہر والوں کی محبت کا قائل ہوں مگر میں نے جس ہاتھ کو چوما وہی خنجر نکلا۔ کچھ بات تو ہے مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور جہاں ہمارا۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اور آپ دیکھنے والے ہیں مفتی سلمان اظہری صاحب کا انٹرویو۔ مفتی سلمان اظہری صاحب جو کچھ بھی اپنی اس انٹرویو میں بتا رہے ہیں مسلمانوں سے، ہم سب مفتی صاحب کی بات غور و فکر کے ساتھ سنیں گے۔ مسلمانوں پر کتنا ظلم و ستم ہوتا چلا آ رہا ہے صدیوں سے، اور جو لوگ ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، گرم ماحول بنانا چاہ رہا ہے، ان لوگوں کے بارے میں مفتی صاحب ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، آئیے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھ کر جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ شعلہ بیان مقرر مفتی سلمان اظہری سلاخوں سے نکل کر کھلی فضاؤں میں آ چکے ہیں۔ فی الحال اپنے آبائی وطن کرناٹک کے ہگلی میں گھر پر ہیں۔ جیل سے باہر آنے پر محض اتنا بھر کہہ کر کہ جلد شور بھی آئے گا، انہوں نے اپنے ارادے ظاہر کر دیے۔ مفتی سلمان اظہری نے یہ بات تب کہی جب ان کے نیز شیر آیا کا شور گونج رہا تھا۔ خیر، ہم آپ کو سلمان اظہری کی بے باکی، مضبوط ارادے اور جوش سے لبریز سیکھ دینے والی گفتگو سنواتے ہیں جو انہوں نے دا لیڈر ہندی کے ساتھ اعلیٰ حضرت کے عرس کے موقع پر ایکسکلوسیو انٹرویو میں ظاہر کیے تھے۔ آج جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے جذبات، یہ جذبات اب بچا کچھ بھی نہیں۔ جس آدمی کا جس کا سب کچھ آپ نوچ لیں، اب بھی کیا وہ نہ بولے؟ کیا ابھی بھی خاموشی اختیار کرے؟ حضور کی شان میں، اسلام کی شان میں، قرآن کی شان میں، رب تعالیٰ کی شان میں یہ بکواس کر کے ایسا زہریلا ماحول بنا چکے کہ اب سیکولر نام کا کوئی نظر بھی نہیں آتا۔ تو اب اتنا سب ماحول جب کریٹ کیا گیا ہو تو کیا میں اپنے قوم کی طرف سے، اپنی کمیونٹی کی طرف سے اتنا بھی نہیں بول سکتا حق بات کہ دین اسلام یہ آج کل کا لایا ہوا دین نہیں ہے۔ جس دن دنیا کی شروعات ہوئی ہے اسی دن میرا دین یہاں آیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک اسلام ہے اور رہے گا قیامت تک انشاءاللہ۔ بس یہی ہمارا میسیج ہے۔ باقی اور کسی کو چھیڑنا یا ان کو زبردستی اکسانا یہ ہمارا یہ طور طریقہ نہیں، اور نہ ہی میرا مشن ہے۔ اور میں تو یہی کہتا ہوں، آج بھی ہمارے لیے تو یہ بات ہے کہ ہم تو ٹوٹی پوٹی جماعت کے ہیں، 14% تمہاری تعداد کے حساب سے ہندوستان میں ہیں، لیکن پھر بھی اپنی قوم کو، تمہاری پوری قوم کو ڈرانے کے لیے ہمارا ہی نام استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ تو یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ اس طرح کی بہت ساری باتیں بہت برسوں سے آئی ہیں، آتی رہیں گی، لیکن اسلام پہلے بھی اسی طرح لہلہاتا تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ جیسے ہر طرف سے یہ آواز آ رہی ہے کہ ماحول جو ہے، حالات ہیں وہ سازگار نہیں ہیں، لیکن ان کا حل کیا ہے؟ یہ جملہ جو ہے نا، آپ اپنے باپ سے، اپنے دادا سے بھی پوچھے ہوتے نا تو وہ بھی یہی کہتے ہیں، ان کے زمانے میں بھی حالات سازگار نہیں تھے۔ ان کے داداؤں سے بھی پوچھے ہوتے تو وہ بھی یہی بولتے حالات سازگار نہیں تھے۔ تو یہ جو ہے نا 1400 سال سے یہ جملہ تو چلا آ رہا ہے، حالات سازگار نہیں تھے۔ آج آپ کہہ رہے ہیں حالات سازگار نہیں تھے۔ کربلا کے میدان میں کیا حالات سازگار تھے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بدر کے لیے نکلے تھے حالات سازگار تھے؟ احد کے میدان میں کیا حالات سازگار تھے؟ حالات کے سازگار ہونے کا یہ جو مسئلہ لوگوں کے دماغ میں ڈالا گیا ہے، مسلمانوں کو میں نکالنا چاہتا ہوں کہ نکالو۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار بو لہبی سے چراغ مصطفی۔ ہمیشہ یہ حق و باطل کی جنگ چلتی رہی ہے، اور ہم جو ہے
इस मसलक के मानने वाले हैं कि हम क्वांटिटी नहीं देखते, क्वालिटी देखते हैं। क्वालिटी देते हाँ, हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिपाही ईमान और यकीन के साथ रहते हैं। वो वैसा तादाद पे, असबाब पे और ये तमाम साजो सामान पे भरोसा करके नहीं जीते। कभी नहीं। आज भी जो आप कह रहे हैं हालात साजगार, ये हर ज़माने में हालात साजगार हमारे लिए रहे ही नहीं, कभी जी कभी नहीं रहे। हालात साजगार कभी नहीं होंगे। और इसीलिए आपको और दूसरे लोगों को मैं मैसेज ये देना चाहूँगा, मुसलमानों, अगर इंतज़ार करते रहोगे हालात साजगार हो जाएं, मर जाओगे और कुछ नहीं होना है। नहीं गाड़ी चलाना सीखना है तो ट्रैफिक में ही चलाना होगा, सही बात। सीख जाओगे। और इन्हीं हालात में आपको चल करके बताना है कि ईमान की ताकत क्या है। क्या है? नहीं, जैसे क्या मतलब नहीं समझ पाया कि क्या बस मुसलमान मैंने करें। मैसेज यही दिया है आपको, हालात साजगार होने का दावा, ये जो नारा है इसको जहन से निकालो, और ये कभी साजगार नहीं होंगे हमारे लिए। ज़हनी इन्हीं मिठाइयाँ हालात के हैं। दरमियान हमको हमारे ईमान के साथ जमे रहना है। हमें हमारे अखलाक को छोड़ना नहीं है, हमें हुजूर पाक की सुन्नतों से दूर होना नहीं है। आंधियाँ आ जाएं, तूफान आ जाए तो क्या आप अपना घर छोड़ के भाग जाएंगे? कभी नहीं। इसी तरह से अगर आज हालात साजगार के तौर पर आप समझ रहे हैं तो आपको न दीन से हटने की ज़रूरत है, न हुजूर के अखलाक से हटने की अखलाक ज़रूरत से हटने के लिए है। आज भी हुजूर के अखलाक पर कायम रहो, हालात आएंगे और बदल जाएंगे इंशाअल्लाह। बदल जाएंगे लेकिन इंशाअल्लाह। पॉलिटिकल उसकी बात हो रही है कि जिस तरह से पॉलिटिकल एक माहौल बना है उसको लेकर तमाम तरह से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और हर तरफ से ये आवाज़ आ रही है कि शायद ये माहौल अब बदलेगा नहीं। आपको अगर मैं बताऊं, ये पॉलिटिकल माहौल इतना बनाया गया है, ऐसा हो गया है, जहर हो गया है, ठीक है। आपने तारीख पढ़ी है, चंगेज़ खान से ज़्यादा तो हालात ख़राब नहीं किए गए होंगे अभी, नहीं। हलाकू से ज़्यादा तो बर्बादियां नहीं की गई होंगी अभी। उन्होंने तो पूरे हमारी खोपड़ियों से मीनार बना दिए थे, हमारे खून से तो बगदाद को नहला दिया था। तो ये सब तो जुल्म देखा है हमारी तारीख़ ने। तो अब पॉलिटिकल एतबार से अगर ये इतना सब कुछ बना चुके हैं तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। 100 साल पहले 1925 की बात कर रहा हूँ मैं आपको। हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह का खुतबा है, एक खुतबा सदारत। आपने किसी एक कॉन्फ्रेंस में खुतबा दिया था, ये उसकी बातें आप पढ़ें तो आपको ऐसा लगेगा वो इस ज़माने की बात कर रहे हैं, अभी 2023 की बात कर रहे हैं। उस वक्त 1925 में उन्होंने फरमाया कि हालात ऐसे हो गए हैं कि इन लोगों ने सियासी माहौल बना दिया है, जगह जगह कत्ल के मंसूबे हो रहे हैं, मुसलमानों का बहिष्कार करने के प्लान हैं, मंसूबे हैं, जमातें हैं। ये सारी बातें वो पढ़ने के बाद मैंने सोचा 1925 में ये हालात थे, ये हालात तो 2023 में बदले कहाँ हैं? और अगर 100 साल पहले भी ऐसा ही था तब भी इस्लाम ऐसे ही था। नहीं, जो सियासी लड़ाई है वो मुसलमानों को खुद लड़नी पड़ेगी या इस दौर से हटकर अपने आप को सेफ कर सकते हैं? अब देखिए, एक सियासत का एक मौजू अलग है, मुसलमानों को सियासी शऊर बेदार कर लेना चाहिए। अब तक ये बहुत गुलामी के दौर में गुजरते गए और इनका माइंड ऐसा बना दिया गया है कि अब इनको ऐसा लगता है कि जैसे दिमाग में ये बिठा दिया गया, बीजेपी और कांग्रेस ये समझने लग गए कि बीजेपी मौत का फरिश्ता, कांग्रेस जो है अमन का मसीहा। दोनों भी मैं नहीं मानता, ना ये मौत ला सकते हैं और ना ये अमन ला सकते, हमारे लिए नहीं। आपको अपना सियासी शऊर बेदार करना है। ये सब जो है ना लॉलीपॉप दे करके हमारे साथ खेलने वाले हैं जो 70 साल से खेलते आए। जी मुसलमानों को ना ही ये आगे बढ़ने दिए, ना क़ियादत करने दिया, और ना ही अपनी कम्युनिटी की तरफ से आए हुए मसाइल को आप आगे तक बात करने की इन्होंने कभी हिम्मत जुटाई। दूसरे सारे लोगों के उनको राज़ी रखने के लिए ये सब कुछ करने को तैयार, लेकिन मुसलमानों के बारे में इनको पता है ये छोटी छोटी चीज़ों पे राज़ी हो जाएंगे। हाँ, इनके ऊपर जो कुछ भी बला आएगी हम नहीं बोलेंगे पार्लियामेंट में, इनको बाद में हम घर पे बुला के दावत करके मना लेंगे। ये सियासत चलती है। इसके लिए मुसलमानों को चाहिए कि अपना सियासी शऊर बदलें और अपनी सियासत की लड़ाई वो खुद लड़ें। लेकिन कैसे हो सकता है? एक तरफ 80%, जैसे चुनाव में भी ये नारा दिया गया कि 80 और 20 की लड़ाई है। अच्छा, तो कैसे ये लड़ी जाएगी कि एक तरफ 80 और एक तरफ 20? एक हॉस्टल में बहुत सारे जो हॉस्टल में रहने वाले थे उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया वार्डन के खिलाफ। सुबह रोज़ाना खिचड़ी बनती थी और खिचड़ी पसंद नहीं थी, तो सारे लोगों ने वार्डन से शिकायत की कि हमको खिचड़ी नहीं चाहिए, दूसरा कुछ बनाओ नाश्ते। सुनिए, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। तो वार्डन ने कहा कि ठीक है, सारे स्टूडेंट जितने हैं सब जमा हो जाओ, देखते हैं। और कुछ स्टूडेंट थे वो कहते थे नहीं हमको खिचड़ी ही चाहिए, हमको खिचड़ी चाहिए। तो
वार्डन ने जब ये कहा कि मैं अब वोट करूँगा, जो सारे जितने नौजवान ये स्टूडेंट्स हैं आए अपना अपना पक्ष रखें, तो अब इख्तियार जब दिया गया ना तो सारे स्टूडेंट जो है ना अलग अलग अंदाज में अपनी अपनी इच्छाएं रखने लगे। 13% ने एक अलग नाश्ते का नाम लिया, 15% ने एक अलग नाश्ते का नाम लिया, 12% ने एक अलग, 80% लोग खिचड़ी के खिलाफ थे, लेकिन वो सब इसमें घटे। बाद में वो 20% जो खिचड़ी वाले थे वो मुत्तफिक थे। बाद को जब रिजल्ट निकला तो वार्डन ने कहा 80% तो ये खिलाफ हैं, लेकिन एक नाश्ते पे जमा नहीं है, तो नाश्ता वही बनेगा जो ये 20% चाहते हैं। आप जिस तरह बहुत साफ प्यारा गोई से बात बोलते करते हैं तो दूसरों की नज़र में तो खटकते ही हैं, लेकिन कभी कभी आप अपनों का भी निशाना बन जाते हैं। तो क्या ये सिलसिला चलता रहेगा या कुछ ऐसा रद्द अमल या आपकी तरफ से कोई ऐसा लाए अमल तय होगा कि नहीं अब ऐसा नहीं करना? मैं गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ आपके सवालात पर। फराज का एक शेर है, मैं तो मक्तल में भी किस्मत का सिकंदर निकला, सिकंदर ने कुर्रे फाल मेरे नाम का अक्सर निकला, अक्सर ने शहर वालों की मोहब्बत का कायल हूँ मगर मैंने जिस हाथ को चूमा वही खंजर निकला। सिकंदर ये फराज ने कहा था, तो इससे होदा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन अपनों की आप बता रहे हैं निशाना, तो हो सकता है वो मोहब्बत में या प्यारा किसी तरह गुफ्तगू मेरी करते इस्लाह हैं के लिए करते हों। सुभान मैं अल्लाह। उनसे बेजार नहीं हूँ और ना ही उनसे मेरा कोई मसला है। जी, हाँ, और दूसरों के नज़रों में अगर खटकता है तो खटकता रहने दें, खटकता रहने दो। कोई मसला नहीं है। और यही चीज़ दीन की खिदमत के लिए हमारे लिए काफ़ी है। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तबारक व तआला हमें इसी तरह से बनाए रखे कि आमीन। दुश्मनान रसूल के लिए हम कभी नरम ना हो और अपनों के लिए अल्लाह ताला हमेशा हमें नरम रखे। नरम दीन। नरम। सुभान अल्लाह। अभी आपने मुफ्ती सलमान अदहरी को सुना, उन्होंने बिल्कुल साफ मैसेज दे दिया है अपनों के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो आपको निशाना बनाते हैं।